Hello friend, today we are going to discuss about chemistry paper number 2nd, that is reactions and mechanism. So in this unit, first topic is types of reactions. So there are different types of reactions. Different types of reaction. First reaction is substitutions reaction. Second reaction is addition type of reaction. Third reaction is elimination type of reaction. And fourth reaction is rearrangement reaction. Fifth reaction is redox reaction. And sixth type is pericyclic. Of this, first type of reaction is substitution types of reaction. So in this substitution type of reaction, one of the group or atom replaced by another group of atom. Suppose Rx, that is alkyl halide. Alkyl halide reacts with aqueous KOH. So the group that is the halogen group. Halogen group replaced by this OH. This OH comes here and halogen go here. That is ROH. Means Rx reacts with KOH. So X replaced by OH. Means here halogen atom replaced by OH group. Means ROH. देखो यहाँ पे क्या हुआ, RX है, RX की जगह X यानी हेलोजन की जगह क्या आया, OH आया. मीन्स क्या हुआ, हेलोजन क्या हुआ, OH से रिप्लेस हुआ. हेलोजन रिप्लेस बाय OH. मीन्स वन ऑफ द ग्रुप और एटम रिप्लेस बाय अनदर ग्रुप और एटम. यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रुप और एक एटम दूसरे ग्रुप से क्या हुआ, रिप्लेस हुआ. इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन टाइप्स ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन? So one of the group or atom replaced by another group of atom, means one of the group or atom replaced by another group of atom, it is called as substitution type of reaction. This type of reaction are different types such as nucleophilic substitution reaction, free radical substitution reaction, and last type is electrophilic substitution type of reaction. Means substitution reaction again classified into three types. How many types? Three types. So first is nucleophilic substitution reaction. Second type is electrophilic substitution reaction, and third type is free radical substitution reaction. So nucleophile means यहाँ पे क्या हुआ है, देखो RX, सपोज हम एग्जांपल लेंगे CH3Br reacts with KOH aqueous. तो क्या हुआ, यहाँ पे CH3 क्या हुआ, पार्शियल पॉजिटिव. क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br से कम है. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और Br पे क्या हुआ, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली K पॉजिटिव और OH नेगेटिव. तो नेगेटिव मींस ब्रोमीन इज नेगेटिव रिप्लेस बाय नेगेटिव एटम. मींस यहाँ पे ब्रोमीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पे OH माइनस क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल. तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है. तो आपको मिलेगा CH3, Br रिप्लेस हो गया OH से, तो CH3OH प्लस KBr. तो क्या हुआ, देखो दोस्तों, CH3Br प्लस KOH मींस bromine is nucleophile replaced by OH minus nucleophile. Means this is the type of nucleophilic substitution reaction. So what is the definition of nucleophilic substitution reaction? One of the nucleophile replaced by another nucleophile. Thus reaction in which one of the nucleophile replaced by another nucleophile, it is called as nucleophilic substitution reaction. Similarly, electrophilic substitution reaction. Suppose this is CH3Na reacts with Mg, or CH3Li reacts with Mg, you will get CH3Mg plus Li. Suppose one of the electrophile replaced by another electrophile, it is called as electrophilic substitution type of reaction. And next one is free radical substitution reaction. Suppose CH4 reacts with chlorine in the presence of UV light or sunlight, you will get, देखो यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का
Cl क्या होने वाला है, रिप्लेस होने वाला है। मतलब लाइट के प्रेजेंस में या पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन जाती है वो फ्री रेडिकल टाइप की रिएक्शन होती है। तो CH3 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय Cl, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, रिप्लेस हुआ Cl से। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, अभी कितने रहे, 3, और एक हाइड्रोजन की जगह क्या आया, Cl आया। तो क्या हुआ, one of the hydrogen replaced by Cl, but this is the free radical substitution। यहाँ पे ना इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस हुआ ना न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फ्री रेडिकल रिप्लेस हुआ। तो क्या हुआ, substitution reaction are of 3 types। First is nucleophilic substitution reaction in which one of the nucleophile replaced by another nucleophile। Second is electrophilic substitution reaction in which one of the electrophile replaced by another electrophile। Next one is free radical substitution type of reaction in which one of the free radical replaced by another free radical, and free radical substitution reaction take place in the presence of light or peroxide। यहाँ पे अगर एरो पे अगर आपको लाइट दिया होगा या पेरोक्साइड दिया होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये फ्री रेडिकल टाइप की रिएक्शन है। जहाँ पे भी लाइट और क्या दिया रहता है, अगर यहाँ पे लाइट भी दिया रहा है या पेरोक्साइड दिया रहा है, पेरोक्साइड यानी H2O2, अगर H2O2 दिया रहा या लाइट दिया रहा तो वो रिएक्शन क्या रहती है, फ्री रेडिकल। तो टॉपिक पे आएंगे। पहला टॉपिक था सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन टाइप में क्या होता है, वन ऑफ द ग्रुप और एटम रिप्लेस बाय अनदर ग्रुप। ओके, तो सेकंड टाइप है एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। एडिशन टाइप, एडिशन आपको पता है, एडिशन कब मिलेगी, जहां पे अगर आपको अनसैचुरेशन होगा। इफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 reacts with one of the small reagent, when two compound this small molecule adds into unsaturated molecule you will get single molecule। देखो क्या हुआ, यहाँ का H यहाँ पे गया और Br कहाँ गया, ये कार्बन पे, यानी ये कार्बन पे क्या आया, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन ये कार्बन पे आया और ये ब्रोमीन ये कार्बन पे आया, यानी दोनों के दोनों एटम क्या हुआ, ये अल्कीन में एडिशन ऐड हुए। when small group or atom added into the unsaturated compound and to give single product। देखो यहाँ पे कोई बाय प्रोडक्ट है क्या, नहीं, ये क्या है, सिंगल प्रोडक्ट। मींस when unsaturated compound reacts with small compound and this small molecule adds into unsaturated compound we get single molecule, it is called as addition type of reaction। कैसे पता चलेगा, ये अल्कीन है, अल्कीन में क्या हुआ है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल कंप्लीट ऐड हुआ यानी ये एक कार्बन पे हाइड्रोजन आया और एक कार्बन पे ब्रोमीन आया और आपको सिंगल मॉलिक्यूल मिला, उसमें भी अनसैचुरेशन नहीं है। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। और एडिशन टाइप की रिएक्शन में और डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसी रहती है, तो आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल 12th में हुआ है, HBr, यहाँ पे क्या दिया है, कुछ भी दिया नहीं है। एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन में अगर यारों पे कुछ भी नहीं दिया तो क्या होता है, H+ सबसे पहले ऐड होता है और बाद में ब्रोमीन ऐड होता है, तो वो रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो CH2 का क्या हुआ, CH3 CH2Br ऐड हुआ, मगर यहाँ पे क्या हुआ, H+ की एडिशन हुई सबसे पहले, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसी एग्जांपल को हम क्या करेंगे, थोड़ा फ्री रेडिकल के टाइप करेंगे। तो क्या फ्री रेडिकल के लिए अभी मैंने बोला था क्या चाहिए, सनलाइट या पेरोक्साइड। तो यहाँ पे अगर आपको पेरोक्साइड दिया है, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और खराश इफेक्ट, और ये है मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल से आप जो भी रिएक्शन करते हो तो उसके एरो पे कुछ भी दिया नहीं रहता। अगर पेरोक्साइड अगर आया तो आपकी एडिशन क्या हो जाती है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाती है। हम क्या कर रहे हैं अभी, सिर्फ डिफरेंट टाइप सीख रहे हैं, तो उसके ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा मॉलिक्यूल ऐड होते समय अगर इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये जो पहला एग्जांपल है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का है, और ये जो सेकंड एग्जांपल है तो ये यारों पे क्या दिया, पेरोक्साइड और लाइट दिया है। तो आपको पता चलना चाहिए कि जब भी आपके यारों पे पेरोक्साइड और लाइट होगा वो क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एडिशन हो रही है।
तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, दिस इज द प्रोडक्ट। और लास्ट में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो आपको पता है सब कार्बोनिल कंपाउंड क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे कि ये है CH3 Mg Br, Br Mg पॉजिटिव है, मिथिल नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल आया और ये कार्बन पे क्या हुआ, ऐड हुआ, मींस आपको मिला वो Mg Br और यहाँ पे क्या आया, मिथिल। ये समझ लो, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है मिथिल, ये ऐड हो रहा है ये कार्बोनिल कार्बन में, और आपको क्या मिल रहा है, ये ऐसा एडक मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सेकंड टाइप है दोस्तों एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, छोटा सा मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड होके आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी सिंगल प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी सिंगल प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी सिंगल प्रोडक्ट है, आपको बाय प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो ये इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन और अगेन कितने टाइप है, 3 टाइप से। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर एरो पे कुछ नहीं दिया है तो आपको समझ में आना है, ये H+ आएगा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड, अगर आपके एरो पे पेरोक्साइड और लाइट है तो ये जो एडिशन टाइप रिएक्शन हो रही है तो ये फ्री रेडिकल एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन हो रही है। और लास्ट में जो न्यूक्लियोफाइल है, आपको न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आता है, जब कार्बोनिल कार्बन होता है, तो कार्बोनिल कार्बन में जब भी एडिशन होती है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो ये सेकंड टाइप है रिएक्शन का। तो कितने टाइप की रिएक्शन देखी अपन ने, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सेकंड टाइप है एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। अभी थर्ड टाइप है एडिशन के अपोजिट, थर्ड टाइप इलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। इलिमिनेशन, इलिमिनेशन सबसे इजी है। एडिशन यानी दो मॉलिक्यूल को ऐड करना, हाँ, दो मॉलिक्यूल की एडिशन करना, एडिशन यानी 1 + 1 2, ऐसा एक टाइप है। और ये जो है इलिमिनेशन रिएक्शन, ये एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन से अपोजिट है। सिंगल प्रोडक्ट से क्या मिलता है आपको, दो छोटे छोटे कंपाउंड मिलते हैं। व्हेन स्मॉलर मॉलिक्यूल इलिमिनेटेड और रिलीज, और smaller molecule eliminated or released from the bigger molecule to get unsaturated compound and small molecule। देखो यहाँ पे क्या हुआ, CH3 CH2 भी आ रहा, हम ऐसे करेंगे ना। थर्ड टाइप है elimination type of reaction, when smaller molecule are eliminated from the bigger molecule you will get the unsaturated compound, it is called as elimination type of reaction। कैसी रिएक्शन हुई है, देखो CH3 CH2 Br और यहाँ पे KOH ही दिया है मगर अल्कोहलिक दिया है। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, छोटा मॉलिक्यूल निकल लेता है और ये हिट डी है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो CH3 का है तो ये एक हाइड्रोजन और एक Br साइमल्टेनियस HBr क्या होता है, निकल जाता है। तो आपके पास क्या रहा है, CH2 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 CH2, वैलेंसी कंप्लीट नहीं इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और HBr निकल गया। ओके, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, देखो एडिशन के अपोजिट है। हमने क्या किया था, ये दोनों की एडिशन करके ये मिला था, मगर ये मॉलिक्यूल से अगर आपको छोटे छोटे दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। जैसे कि डीहाइड्रो हैलोजनेशन इलिमिनेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन, वाटर को निकाल लो, आपको वाटर को निकालना पड़ेगा, तो वो भी रिएक्शन है। देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या निकलता है, वाटर निकलता है। हीट करो, हीट करने के बाद क्या होता है, ये OH और ये H, यहाँ का एक H, यहाँ का एक H गया तो CH3 का क्या हुआ, CH2, बाद में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आया CH2, यहाँ पे क्या गया डबल बॉन्ड, और एक H और एक OH क्या निकला बाहर, छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। जो भी रिएक्शन में स्मॉलर मॉलिक्यूल, ये सिंगल कंपाउंड से अगर आपको दो कंपाउंड मिल रहे, एक है अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, और एक है छोटा सा मॉलिक्यूल, वो जो रिलीज हो रहा है बाय प्रोडक्ट करके, उसे बोलते हैं इलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद था एडिशन रिएक्शन। एडिशन में दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल की एडिशन होती है और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इलिमिनेशन उसके अपोजिट है, अपोजिट मींस रिवर्स रिएक्शन ऑफ रिवर्स टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ एडिशन रिएक्शन। सिंगल मॉलिक्यूल से दो टुकड़े होके एक अनसैचुरेटेड और छोटा सा मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है, तो उसे बोलते हैं इलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप है रीअरेंजमेंट
रीअरेंजमेंट यानी क्या होता है, द रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूल आर रीअरेंज बाय ट्रांसफर ऑफ अल्किल ग्रुप और एटम फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन, इट इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एटम और ग्रुप क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और जो प्रोडक्ट मिलता है वो ट्रांसफर होके आपको प्रोडक्ट मिलता है, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड एज, वन ऑफ द एग्जांपल इज वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट। ओके, वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, CH3 CH2OH। ओके, ऐसा प्रोडक्ट है, आपको एसिड दिया रहता है, ये थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट जाएगी, बहुत इजी है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये जो है फोर्थ टॉपिक है रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ट्रांसफर ऑफ एटम और ग्रुप फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन, इट इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। एंड rearranged product are formed, or rearranged product is formed by the transfer of atom or group from one carbon to another carbon, it is called as rearrangement type of reaction। ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो ये रिएक्शन जो दी है इसे बोलते हैं, ये नेम रिएक्शन है वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट। तो वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है, जो एसिड के प्रेजेंस में जो OH है उसका कार्बोकैटायन फॉर्म होके ये जो मिथिल है, ये कार्बन पे देखो कितना है, 1 2 और 3 मिथिल है। प्रोडक्ट में क्या कितने मिथिल दिख रहे हैं कार्बन पे, ये कार्बन पे कितने मिथिल दिख रहे हैं, 1 2 3 थे, अभी कितने 2, और ये कार्बन पे मिथिल था क्या, नहीं, मगर यहाँ पे एक मिथिल यहाँ पे ट्रांसफर हुआ दिख रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। मींस ये अल्किल ग्रुप क्या हुआ है, माइग्रेट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, ये कार्बन से ये कार्बन तक। तो ये पहला कार्बन, सेकंड, पहले ये मिथिल ग्रुप ये सेकंड कार्बन पे था, अभी ये मिथिल ग्रुप ट्रांसफर होके पहला ये इस कार्बन पे आया। तो इस दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज rearrangement type of reaction, and this is the rearranged product, means transfer of alkyl or hydrogen or transfer of group or atom from one carbon to another carbon, it is called as rearrangement type of reaction। तो बहुत डिफरेंट टाइप के rearrangement reaction है, जैसे कि पिनाकोलोन rearrangement, वैगनर मिर्विन rearrangement are the one of the most important example of rearrangement type of reaction। हॉफमैन rearrangement, बहुत डिफरेंट टाइप के रिएक्शन है। तो आपको यहाँ पे क्या ख्याल में रखना है, the reaction in which group or atom transfer from one atom to another atom or one carbon to another carbon, it is called as rearrangement type of reaction। next reaction is redox reaction। redox reaction क्या है, तो redox यानी reduction and oxidation reaction। redox reaction, तो redox reactions क्या है, तो redox reaction यानी mixture of reduction and एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन, व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, H2 की एडिशन हो रही है तो उसको ही रिडक्शन बोलते हैं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर यानी वो जो कार्बन पे चार्ज आता है। और लास्ट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये दो बातें ख्याल में रखना चाहिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन जैसे कि CH3COH, ये है 1 and 2, दैट इज द ethanol, that is aldehyde। ethanol reduce in the presence of LiAlH4, lithium aluminum hydride, and after reduction there is a hydrolysis in the presence of acid, you will get CH3CH2OH। तो आप कोई भी रिएक्शन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले क्या करो, ये प्रोडक्ट में और ये रिएक्टेंट में और ये रिएक्टेंट में और ये प्रोडक्ट में क्या चेंज हो रहा है आपको देखना है। देखो CH3 वैसा क्या वैसा है, उसके बाद कार्बन कार्बन है,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आया, वो सिंगल था, वो सिंगल है, मगर उसको भी एक हाइड्रोजन, यानी टोटल कितने हाइड्रोजन बढ़े, हाइड्रोजन की जो नंबर है, दो हाइड्रोजन बढ़े, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे पता चला, देखो प्रोडक्ट में दो कार्बन थे, चार ही हाइड्रोजन थे, मगर सॉरी रिएक्टेंट में चार हाइड्रोजन थे, और प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन आ गए, चार, छह, यानी कितने हाइड्रोजन बढ़े, दो हाइड्रोजन बढ़े। तो दो हाइड्रोजन बढ़े यानी क्या हुआ, हाइड्रोजन की एडिशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस रिडक्शन। उसके बाद वैसे ऐसे भी रिएक्शन है, CH2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकेल हीट, आपको मिल रहा है CH2 का क्या हुआ है, CH3, CH2 का क्या हुआ है, CH3, और डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन क्या किए आपने, ऐड किए, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस रिडक्शन। सो दिस इज आल्सो रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज आल्सो रिडक्शन रिएक्शन। ओके, उसके बाद देखेंगे ऑक्सीडेशन, इसके अपोजिट है, ऑक्सीडेशन इसके अपोजिट है, देखो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ, वहां पे हाइड्रोजन की एडिशन की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद क्या था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में क्या बोला था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये डेफिनेशन काम की नहीं, आपको दो डेफिनेशन आपको पता चाहिए होना चाहिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि CH3CHO undergo oxidize into K2Cr2O7 act as an oxidizing agent and CH3COOH। पता आपको मैंने अभी ट्रिक्स बताई कि CHO और CH3 में, और दैट इज रिएक्टेंट है, और ये क्या है, इधर के राइट में प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या चेंजेस हुए, तो एक यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया, बाकी एटम सेम है। देखो दो कार्बन थे, चार हाइड्रोजन, तीन और एक, चार हाइड्रोजन है, एक ही ऑक्सीजन था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया, यानी ऑक्सीजन बढ़ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, अल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड वन इज CH3CH2OH undergo oxidize in the presence of PCC, आपको CH3CHO अल्डिहाइड मिला। तो क्या हुआ, देखो तीन तीन CH3 रह गया, CH2 है क्या, नहीं, दो हाइड्रोजन लॉस हो गए, मींस लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन मींस अगेन ऑक्सीडेशन। तो देखो सबसे पहले आपने रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज द फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप की रिएक्शन है, एक है रिडक्शन रिएक्शन और एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या कर रहे हैं आप, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन उसके अपोजिट है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एडिशन कर रहे, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लॉस कर रहे हैं तो रिडक्शन, यही ख्याल में रखो, आपको पता चल जाएगा। और ये पांचवे टाइप की रिएक्शन थी रेडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये पांच टाइप की रिएक्शंस आपको 10 मार्क के लिए पूछते हैं, 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विद सुटेबल एग्जांपल। तो आपको जो पांच टाइप की रिएक्शन बताइए मैंने, वो आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, एक्सरसाइज लेंगे, थोड़े एग्जांपल लेंगे, आपको क्या करना है, डिटेक्ट करना है कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो आपको बताओ ये कौन से टाइप की रिएक्शन है।
ओके, तो ये सबसे पहली वाली रिएक्शन कौन से टाइप की है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। तो पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले देखना है आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पे ब्रोमीन था, ब्रोमीन की जगह क्या है, साइनाइड है, मीन ब्रोमीन रिप्लेस बाय साइनाइड, means one of the group or atom replaced by another group of atom, it is called as substitution type of reaction। तो कौन से टाइप की रिएक्शन है, substitution type of reaction है। उसमें भी ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, that is called as nucleophilic substitution reaction। ओके, सेकंड टाइप देखो, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन की जगह क्या है, NO2 आया, हाइड्रोजन की जगह क्या आया, NO2 आया, यानी एक हाइड्रोजन NO2 से क्या हुआ, अगेन रिप्लेस हो रहा है, क्या हुआ है, रिप्लेस हो रहा है। मगर यहाँ पे H कैसा जा रहा है, H प्लस जा रहा है, और HNO3 का जो आ रहा है वो NO2 प्लस आ रहा है, मीन वन ऑफ H प्लस जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और जिस पे भी नेगेटिव चार्ज आता है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस बाय इलेक्ट्रोफाइल, देखो H प्लस जा रहा है, NO2 प्लस आ रहा है, H प्लस रिप्लेस होके H प्लस NO2 से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मगर ये कौन सी टाइप की रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे जो रिएक्शन दी है, आप देखो यहाँ पे Br था, यहाँ पे Br दिख रहा है क्या, नहीं, उसके बाद आप हाइड्रोजन भी काउंट कर सकते हो, एक हाइड्रोजन था, ओके, तो एक H एक Br, यह CH3, सॉरी ये कुछ थोड़ी प्रोडक्ट गड़बड़ है, हाँ देखो यहाँ पे H, ऐसी भी रिएक्शन रहती है, दैट इज एक्चुअली ये प्रोडक्ट है, ये देखो ब्रोमीन दिख रहा है क्या प्रोडक्ट में, नहीं, यहाँ पे ब्रोमीन दिखा था, यहाँ पे ब्रोमीन नहीं, यानी कुछ तो भी इलिमिनेट हुआ, कुछ तो भी इलिमिनेट हुआ। तो ये यहाँ पे जो इलिमिनेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे आप, इलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो कौन से टाइप की रिएक्शन है, इलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। और 5-6 एग्जांपल देता आपको सॉल्व करना है, ओके। थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 12th में हुआ है ये, और बहुत सिलेबस बहुत है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, ओके। तो रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ओके, कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, दैट इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट, उसकी स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर सब आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मैं कुछ प्रॉब्लम लिख के दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, उसका टाइप ऑफ रिएक्शन देखना है, ओके। तो ये रिएक्शन है, उसके बाद इट इज पर एसिड, ओके, इसे बेयर विलेजर बोलते हैं, बेयर विलेजर। उसके बाद व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, आपको क्या करना है, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। ओके, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और आपको बताना है RCONH2, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, ओके। तो ये 6th 7th है, सेवंथ रिएक्शन। ये 7 रिएक्शन का क्या करना है आपको, डिफरेंट टाइप्स आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है।
तो ये होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट करके आपके इसके आंसर आप बता सकते हो। तो आज जो देखा है हमने वो 5 टाइप के टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे हैं। 5 टाइप के रिएक्शन में कौन से थे? सबसे पहला था सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है भाई? सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है? एक वन ऑफ द ग्रुप और एटम क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है, जैसे Br रिप्लेस हो गया यहाँ पे साइनाइड से, तो सब्स्टिट्यूशन। सेकंड है एडिशन, मीन अल्कीन में क्या हुआ है? कुछ तो भी ऐड हो रहा है, एडिशन, मगर आपको एडिशन। ओके। थर्ड है एलिमिनेशन, छोटा सा मॉलिक्यूल क्या हुआ है? निकल के आपको क्या हो रहा है? एलिमिनेट हो रहा है, तो एलिमिनेशन। फोर्थ कोई था आपको रीअरेंजमेंट, वन ऑफ द अल्किल ग्रुप और एटम ट्रांसफर फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन। कार्बन, एक कार्बन से दूसरे कार्बन में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। और लास्ट में था रेडॉक्स रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये 5 टाइप की रिएक्शन हमने आज देखे। ओके, इसका स्टडी करो और ये सब एक्सरसाइज आप क्या करो? सॉल्व करो। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।